So, a very warm welcome to everyone to my online classes. Here we start the first class, the important cases in India. So, in Supreme Court, there are 62,000 cases which are pending. In High Court, there are 38 lakh cases which are still pending. So, there is one envisaged role of judiciary which is as per the constitution. It is an active participant in the social transformation. For example, the rights given to the SC/ST, to the women, it will help eventually the country to become more socially egalitarian society. Apart from that, it is the guardian of the fundamental rights. For example, in the UPSC prelims question, it was asked that who among these is the guardian of the fundamental right. The answer is Supreme Court. Then we'll see how it is evolved from various judgment like AK case, habeas corpus case, Menka Gandhi case. This is very important. So the other role is the protector of the federalism. This we can see from the Bomai case. Then the protector of the rule of law 2G spectrum case. So these cases you can learn from my following classes. And apart from that, there is a brief about the Supreme Court. Like it has no effect on the ideology of the government of the day. For example, right wing government or left wing government, it won't have any impact on the Supreme Court. It is anti-majoritarian institution. This is very important point. You can write this in the essays in your polity paper, polity GS1 paper, and apart from that, this is a very important point. Judicial overreach. So judicial overreach is basically in which judiciary act in a certain manner, which it encroaches upon the different domains of the government, of the legislature. So as we all know that the Indian Constitution makes it a fairly distinguished set of things in the legislative manner, in the judiciary and the executive sets, but it is not watertight. So when judiciary encroach upon the other two domains, right? So it is like this. This is India. So it rests on three pillars. You can write this and you can draw this in your mains exam. This is legislature, this is executive, this is judiciary, on which India rests, right? So they gain their power from the constitution. However, if one encroaches the other, it will lead to the imbalance, and you can see if one pillar is larger than the other two, then definitely it will lead to a fall, right? One, two, three, all three are important, right? So we can see this is the judicial overreach, and this is very important concept. Then later on, we have seen this in the farmer protest case. This is a very important case, and in this Supreme Court has taken the role of the executive. We'll see when it took the role of the legislature and the role of the executive. In the I have quoted this because this is a very recent example, right? So you can write this in your mains paper as well. On the due process of law, court gives any judgment. Their judgment is based upon the constitution, on their interpretation of the IPC, right? So how they can read those things? They can directly say that it is mentioned in the law, and as per the law, their judgment is this, right? Whether law is right or wrong, this is not their part to judge. For prelims part, you only need to know their impact. Menka Gandhi case is very important. This is the due process of law, where law itself is right or wrong is also judged upon. Court may say that this is injustice, this is not just, this is not fair, this is not reasonable. So this is the Menka Gandhi case of 1978. So I have written this as per their importance, and then I have mentioned chronological orders, the cases which have impacted this. On the amendability of the constitution, right? This is the amendability of the constitution. We all know the Champakam Durai Rajam case, state of Madras case, then the Shankari Prasad case, right? So this you might be aware of that this deals with the dispute between the fundamental right and the DPSP. So
Right now, I'll give you just the chronology. Later on, when I will take upon the specific polity class or for mains perspective, I'll go into the details of this. Right, Champakam Dorai Rajan case. It deals with the dispute between the fundamental right and the DPSP. Right. So you can just remember it as fundamental right versus DPSP. Right. Second, Shankri Prasad case. Shankri Prasad case is important and it deals with the challenging of the validity of the first constitutional act. So how you can remember this? Lord Shankar. He is considered as the first god, right? First god. And we all know Shankri Prasad is the first case. So first constitutional amendment. It deals with the first constitutional amendment. Okay, you just have to remember this thing. Okay, and this is kind of mnemonic technique I am telling you. Shankri Prasad case, it is said that जो 13(2) कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, it does not apply to the amendments. ठीक है, it is only for the ordinary laws. So the गवर्नमेंट कैन अब्रिज दी फंडामेंटल राइट्स. सो अगर आपने कोई लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली वो फंडामेंटल राइट को भी अब्रिज कर सकती है. मतलब फंडामेंटल राइट से भी ऊपर सरकार के लॉज हो गए. गोलकनाथ केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. इसमें क्या था कि दो पंजाब के भाई थे, उनकी 500 एकड़ की लैंड थी. ठीक है, और हुआ क्या, 500 एकड़ की लैंड थी और इंदिरा गांधी के टाइम का केस है. एंड उनसे 30 एकड़ दोनों से ले ली गई. और उसके बाद अब वो पहुंच गए कोर्ट कि भाई हमारी लैंड ले लिया आपने. ठीक है ना, तो कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि फंडामेंटल, उस टाइम में ये राइट टू प्रॉपर्टी था. ठीक है, 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था, जो बाद में 300A में डाल दिया गया. तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन आया और वो डिसीजन यही था कि भाई आप नहीं ले सकते. तो रिटेलिएशन में क्या करा गया कि 1971 में गवर्नमेंट ने इसकी वजह से इंदिरा गांधी बॉट 24A, राइट. अब इसमें क्या करा, पावर ऑफ अमेंडमेंट लिख दिया गया. जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर जो 13(4) है उसके अंदर लिख दिया पावर ऑफ अमेंडमेंट रादर देन क्या लिखा, पहले क्या था कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट. तो उसमें अब लिख दिया पावर टू अमेंड. ठीक है, फिर 25A आया, उसके अंदर 39B 39C जो था ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसको इफेक्ट देने के लिए टू प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ 1914 आर्टिकल 1914 31. सो दीज आर प्रिटी मच डिटेल्ड, सो यू कैन स्किप दैट thing. But in the Keshanand Bharti case, now this is very important and we see why. So in the Keshanand Bharti case, the object of directive principle is to embody the concept of the welfare state. अब देखो केशवानंद भारती केस के अंदर क्या था कि भाई कितनी पावर स्टेट के पास है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर है भी या नहीं, ये सब क्वेश्चंस कोर्ट के आगे थे. ठीक है, कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है. अभी हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड करना अलाउ करा गया. ठीक है, अभी बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. और उसके अलावा जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसको वैलिड बोला गया. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके रिटेलिएशन में आई थी, गोलकनाथ केस के. अब उसको बोला गया इसके हिसाब से जो पावर पार्लियामेंट को दी गई थी, जब ये वहाँ पर लिखा था ना पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सही माना गया. अब यानी कि पावर तो बोल दिया कि भाई है आपके पास. ठीक है, अब आर्टिकल 368 एज अमेंडेड वाज वैलिड बट इट डिड नॉट कन्फर पावर ऑन द पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो बात आती है, बेसिक स्ट्रक्चर, अब इसको बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते. बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने जैसे आपको अभी बताया था गोल्डन ट्रायंगल है 14, 19, 21, इसको तो हमेशा लिख के याद कर लीजिए, गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो बेसिक चीज़ें हैं कि माइनॉरिटी राइट्स दिए गए हैं, कुछ
जिसको कहा जा सकता है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप बेसिक फीचर बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम बोलेंगे भाई माइनॉरिटी राइट्स है, राइट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस है, राइट्स टू वुमेन है, देन इक्वालिटी की बातें हैं, ड्यू प्रोसेस की बातें हैं। तो वो सब चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको ही मोटा मोटा ये बोल दिया गया है कि दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज़ नो डिफाइंड सेट कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। टाइम एंड अगेन कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड इट कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अब ये इटसेल्फ एज कोर्ट हैज़ गिवन इटसेल्फ वेरी बिग पावर्स, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे बेसिकली वो कुछ भी कह सकता है, भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक केस और आता है, एडीएम जबलपुर केस। ये एडीएम जबलपुर केस क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की, ठीक है, इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, अब हुआ ये था कि भाई राइट टू लाइफ भी है या नहीं है, तो राइट टू लाइफ को भी नहीं इसमें माना गया था, क्योंकि भाई इमरजेंसी के दिन चल रहे थे, वहाँ पर गोली मार दी जाती थी। इमरजेंसी में मीसा लगा हुआ था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो इट गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसके अंदर कोर्ट ने बहुत ही, मतलब इसको ब्लैक डे ऑफ इंडियन जुडिशरी भी कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भैया जो राइट टू लाइफ है, इट इवन दैट कैन बी सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बिकॉज दैट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। अब आपको याद होगा ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, तो इस वजह से इसको डार्केस्ट माना जाता है कि मतलब आप सरकार गोली भी मार दे तो भी उसको सही प्रूफ कर दिया इन्होंने। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मिनर्वा मिल केस विच इज़ इन इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट केस, एंड वील सी व्हाई। So in this Minerva Mill case, there is 1980 की बात है ये। 1980 के अंदर आपको इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से जो वो सारे लॉस थे, लाइसेंस राज जिसे कहते हैं, वो वाला टाइम था। अब उसके अंदर क्या था कि टेक्सटाइल मिल के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन लो है तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर सकती है। देखो उसकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, भाई उसकी हेडेक है, आज की डेट में तो कम से कम उसी की हेडेक है, लेकिन उस टाइम में था वो गवर्नमेंट की भी हेडेक बन जाती थी, एंड गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर सकती है। तो एक तो उसकी इंडस्ट्री चल नहीं रही, दूसरी गवर्नमेंट ने उसकी टूल्स भी रख लिए, मशीनें भी रख ली कि भाई तेरे से तो चल नहीं रही। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, तो उसको मैं ये एक अच्छा डिसीजन था, प्रोग्रेसिव डिसीजन था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है कि आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया कि जो क्लॉज 4-5 डाले गए थे आर्टिकल 368 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है। इसको आप पूरा याद कर सकते हैं अपनी बुक्स से, लक्ष्मीकांत वगैरह से, और इसको कर लेना। अब इसके अंदर क्या बोला गया, गोल्डन ट्रायंगल की बात करी गई, 1491 आर इनवॉयलेबल, जिसको मैं बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकता हूँ, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, इनएलिएनेबल, प्राइमोर्डियल, कि मतलब मेरे पैदा होने के साथ मेरे फंडामेंटल राइट आते हैं और आप उसकी नहीं छीन सकते, उसकी प्रॉपर्टी, उसको यहाँ तक माना गया। तो आपको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया गया था, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया तो भाई इंडस्ट्री भी छीन सकते हैं, तो इस वजह से ये बोला गया कि नहीं छीन सकते, कंप्लीट नहीं है। अब 2007 का एक केस है IR कोलू केस, इसके अंदर जो 9th शेड्यूल के अंदर जो इम्यून हो जाता है ना जुडिशियल रिव्यू से, अब उसको भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई वो भी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, इट कैन अंडरगो जुडिशियल रिव्यू। अब रिजर्वेशंस के ऊपर कौन कौन से केसेस आते हैं, रिजर्वेशन के ऊपर एक आता है मंडल केस, एक आता है नागराज केस। ये नागराज केस अभी ये थोड़ा रीसेंट वाला है, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 2 केसेस उसको पर्टेन करते हैं, तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, और आपका जैसे वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि दिस केस रिलेट्स टू व्हाट, सो दिस नागराज केस रिलेट्स टू दी OBC रिजर्वेशन case, right? And that it decided that creamy layer could be removed from SC/ST to in the government jobs, right? So but ये implement हुआ नहीं है। फिर है डेथ पेनल्टी केस। अब डेथ पेनल्टी केस के अंदर क्या है, एक बच्चन सिंह केस है, एक मछली सिंह केस है, एक शत्रुघ्न चौहान केस, एक मिस्टर एक्स
वर्सेस हॉस्पिटल जेड केस। अब ये चारों केसेस है। बच्चन सिंह क्या है, देखो अब इसको मैं याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अमिताभ बच्चन कौन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। मछली सिंह क्या है, बिन पानी की मछली, तड़फ तड़फ की मरती है ना। तो अब उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने समझाया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। HIV पॉजिटिव पर्सन का राइट टू मैरी केस था, जिसके अंदर कोर्ट ने ये प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया था कि एक इंसान का राइट टू मैरी कैन नॉट हार्म अ लार्जर सोसाइटी, क्योंकि अगर उसने शादी करी देन इट विल अल्टीमेटली लीड टू स्प्रेड ऑफ द HIV वायरस। तो दिस केस कैन ऑल्सो बी यूज इन द कोविड केसेस, कि एक इंसान का राइट टू मूव आउट ऑफ हिज हाउस, जो उसका पर्सनल फ्रीडम है, वो कैन नॉट वॉयलेट, ही कैन नॉट वॉयलेट द लॉकडाउन्स। ठीक है ना, कि बस भाई मेरा फ्रीडम कैसे वॉयलेट हो रहा है, वो कोई रीज़न नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो आई विल टीच यू इन दी नेक्स्ट क्लास। मेरी फर्स्ट क्लास थी, ये बेसिकली मैं पॉलिटी के अंदर आपको एक ये बताना चाहता था कि व्हेन आई विल टीच यू पॉलिटी, आई विल नॉट टीच यू दी थिंग्स यू कैन ईजिली गेट इन दी लक्ष्मीकांत। मैं ये वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू दीज नोट्स, कि जो चीज़ें आपको मेंस और प्री दोनों में आएगा, एंड एक आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा कि कौन कौन से केसेस किस तरीके से। इवन आपको इससे क्या चीज़ें सीखनी है, दीज केसेस आर वेरी वेल गिवन इन दी लक्ष्मीकांत एज वेल, बट व्हेन यू रीड ना, इस तरीके से आप चीज़ें रिलेट करिए कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है, अच्छा ये केसेस उसके अंदर मैं मेंशन कर सकता हूँ, और इन केसेस में क्या क्या किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, किस तरीके से चीज़ें आ रही थी। ठीक है, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट केस है। बाकी अभी ये आज फर्स्ट क्लास है, एंड मैं भी कोई बहुत एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ, बट आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस क्लास, एंड प्लीज़ आप थोड़ी सी क्लासेस को देखिए, एंड आई एंश्योर यू बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।